So, good morning students, myself Professor P.B. Igde, and today we have to conduct the lecture number 44. Okay. So, write down the today's title. Our today's title is fin efficiency and effectiveness of a fin. Fin efficiency and fin effectiveness. Okay. So this is our today's title, guys. What is the title? Fin efficiency and fin effectiveness. So we already discussed the fin definitions, then derivation of the fins. Okay, for a rectangular fin, for the infinite long fins, and insulated at the tip ends. So various type of the derivation we already derive in our fin topics. Okay. So today we have to discuss what is the fin efficiency and fin effectiveness. So first of all, we define the fin efficiency. Fin efficiency. Okay. It is shown by the letter eta liters. So how to define the fins efficiency? So we know that we already learned the various type of the fins in our previous lecture derivations. Okay. Suppose if you consider the rectangular fins. Okay. What is the rectangular fins? We know the different type of the shape of the fins diagram. Yes or no? Yes. If you consider in this way, so these are the various fins diagrams. इसके अंदर अगर आप देखेंगे पूरे ये डायग्राम के अंदर, तो ये जो फिन दिख रहे हैं आपको, इलेक्ट्रिक मोटर की हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की फिन हो या फिर हमारे इंजन जो है 2 स्ट्रोक इंजन या 4 स्ट्रोक उसकी फिन हो, ये फिन आपको एकदम थिन नज़र आ रही है, एकदम पतली नज़र आ रही। इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी विड्थ ज़्यादा है, लेकिन इसकी थिकनेस क्या है, कम है। तो ये थिकनेस क्यों कम है, इसकी लेंथ क्यों ज़्यादा है, विड्थ क्यों ज़्यादा है, तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं fin efficiency और fin effectiveness में. Okay, so let's we define the what is the fin efficiency, guys. So what is the fin efficiency? Fin efficiency is defined as it is a ratio of actual heat transfer by a fin to the maximum possible heat transfer, by a fin if entire fin area, this is very important statement, if the entire fin area were at the base temperatures. Okay, guys, what is I am write down? You see here, fin efficiency, it is a ratio of actual heat transfers by a fin to the maximum possible heat transfers. Means if you write down in this way, n fin is equal to what is q actual, means q fin upon what is q max. Yes or no? Yes. Q fin upon Q max. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अब हमने अलग अलग टाइप की फिन पढ़ी है. जैसे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, दिस डायग्राम, इफ यू कंसिडर दिस इज द रेक्टेंगुलर फिन डायग्राम्स. ओके, यू अज्यूम हियर, look at this diagram, rectangular fins. Okay, I draw this diagram. So in this diagram, you consider this is the length L, okay, this is the thickness, this is the width, we know all these things. Okay, so let's I draw this diagram here.
सपोज आई कंसिडर दिस इज द फिन डायग्राम्स. ओके, अब ये क्या है, बेस है सरफेस का, बेस ऑफ सरफेस. इसका ग्राफ भी हमने बनाया था बच्चों, यू नो द ग्राफ. इसका ग्राफ हमको कैसे मिला था, ये टी वर्सेस एक्स डायरेक्शंस. तो वी गेटिंग द ग्राफ इन दिस वे. यस और नो? यस. जब बेस पे थे हम तब यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, T0, मतलब यहाँ से मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो रहा था. फिर बाद में धीरे धीरे हीट ट्रांसफर रेट क्या हुआ, कम हुआ. क्यों? क्योंकि ये फिन के अंदर क्या चल रहा था, कंडक्शन. क्योंकि इसके पास में क्या थी, एक लेंथ थी यल, along the which direction, in x directions. तो अभी हमने क्या कंसिडर किया, इट इज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफर बाय ए फिन. अब ये फिन से एक्चुअल हीट ट्रांसफर हो रही, कितनी, क्यू फिन हीट ट्रांसफर हो रही है एक्चुअल्स, बराबर है. रेक्टेंगुलर फिन हम कंसिडर कर रहे हैं. सपोज अज्यूम अ रेक्टेंगुलर फिन. डिफरेंट टाइप की फिन हमने अज्यूम की है, उसमें का हम एक डायग्राम पहले कंसिडर कर रहे हैं रेक्टेंगुलर फिन का. ओके, अब इसमें से कितनी हीट ट्रांसफर हो रही, क्यू फिन. ये कौन सी है हमारी एक्चुअल, जो हमेशा चलते रहता है. एक्चुअली कोई भी हम डिवाइस लेंगे तो उसके अंदर क्यू फिन हीट ट्रांसफर हो रही है एक्चुअली. अब ये जो लेंथ है यल, इसमें से क्या होगा बच्चों, कंडक्शन होगा. कंडक्शन से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होते जाएगा. सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे है, बेस पे है. और हमारे को इसका फार्मूला पता है, किसका, एक्चुअल का. क्या फार्मूला है, देखिए एक्चुअल का क्या फार्मूला है फॉर रेक्टेंगुलर फिन के लिए, इनफाइनाइट. व्हाट इज द फार्मूला, क्यू फिन इज इक्वल टू अंडर रूट पी एच के ए सी एस इंटू वट इज T0 माइनस TA. ये हमारा पास में फार्मूला था, बराबर है. अंडर रूट पी एच के ए सी एस T0 माइनस TA फॉर विच फिन, दिस एक्चुअल फिन. P is the perimeter, H is the heat transfer coefficient, K is the thermal conductivity, A is the cross sectional area, T0 माइनस TA. अब बाद में क्या कंसिडर किया हमने, टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर बाय ए फिन इफ एंटायर फिन एरिया वेयर एट द बेस टेम्परेचर्स. अब देखिए ये फिन में से अगर ज्यादा हीट ट्रांसफर कब होंगी, जब ये जो डिफरेंस है कौन सा, ये T0 माइनस TA, मतलब टेम्परेचर ऑफ अ फिन मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ फिलहाल में T माइनस TA. ये टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना हीट ट्रांसफर क्या होगा, मैक्सिमम होगा. और ग्राफ में अगर देखेंगे हम तो धीरे धीरे ये टेम्परेचर क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है. सबसे मैक्सिमम यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम. तो धीरे धीरे हीट ट्रांसफर रेट क्या होते जा रहा है बच्चों, डिक्रीज होते जा रहा है. क्यों? क्योंकि फिन की लेंथ बढ़ती जा रही, ये लेंथ ने रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज द लेंथ, और हीट ट्रांसफर हो रही कंडक्शन के वजह से. तो धीरे धीरे हीट ट्रांसफर रेट क्या हो रहा, कम. क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये कम होते जा रहा. इनिशियली अगर देखेंगे हम, ये तो फिक्स है, इनिशियली अगर डिफरेंस है ये सरफेस का, अगर हमारे पास में 100, एटमॉस्फेयर है 30, तो डिफरेंस आ गया 17, तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट. बाद में फिर ये हो जाएगा कम, ये हो जाएगा हमारे पास में 80 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 50, तो हीट ट्रांसफर रेट और डिक्रीज. बाद में हम अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा सपोज 50 माइनस 30, तो डिफरेंस आ गया 20. तो धीरे धीरे डिफरेंस क्या होते जा रहा, कम. टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ अ फिन एंड सराउंडिंग, तो हीट ट्रांसफर रेट भी क्या होगा, कम होगा. काय में से, ये ऑब्जेक्ट में से, ये सरफेस में से. तो फिर हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये पूरे फिन का ही टेम्परेचर क्या है, जो बेस का टेम्परेचर है T0, वो पूरे एंटायर एरिया का फिन है. पूरा ये जो पूरा एंटायर एरिया दिया, ये सबका टेम्परेचर क्या हो गया अभी, T0 इज कांस्टेंट मैंने अज्यूम कर लिया. तो फिर यहाँ पे भी लेंगे तो उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे भी लेंगे तो उतना ही, यहाँ पे भी लेंगे तो उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस किसका, T0 माइनस TA का. एक्चुअली ये पॉसिबल है क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ये हम सिर्फ आइडियल पोजीशन में कंसिडर कर रहे हैं. तो ये इसमें फिर हीट ट्रांसफर कैसा होगा, मैक्सिमम. क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि हर बार ये डिफरेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा, यहाँ से लेके तो यहाँ तक. तो फिर हीट ट्रांसफर रेट क्या रहेगा, फिर
maximum possible heat transfer rate by a fin if the entire fin area at the base temperatures। तो फिर ये Q fin के लिए बन गया, Q max क्या आएगा फिर हमारे पास में, देखिए Q max आ जाएगा हमारे पास गाइज, व्हाट इज एच पी एल T0 माइनस TA। H is the heat transfer coefficient, P is the perimeter and L is the length of a fins। ये फार्मूला हमारे पास में आ गया, क्योंकि ये जो है ये क्या अभी एरिया है और ये एरिया कैसे चेंज हो गया, पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ओके, एच क्या है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बिटवीन द टू मीडियम, क्योंकि फिन क्या है सॉलिड, यहाँ पे कौन सा मीडियम है, फ्लूइड एयर है, तो इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, ये एच के वजह से। ओके, तो फिर अब देखिए क्या मिलेगा हमको इक्वेशंस। So what is the change in that equation? Q fin is replaced by this formula under root PH K ACS into T0 minus TA upon maximum what is H PL। ओके, H PL ब्रैकेट में आ जाएगा T0 माइनस TA। अब ये T0 गाइज और ये T0 हो गया कैंसल, तो फिर क्या बचा हमारे पास, देखिए इसको मैं भी मिटा देता हूं। सो व्हाट इज द फिन इफिशियंसी, इट इज, इसको मैं अंडर रूट में लिखता हूं अभी, देखिए ये HPL को, ये PH के ACS ओके अपॉन अंडर रूट में आ गए ये दो बार PH, इधर अंडर रूट में ये PH और यहाँ पे L, तो ये PH PS हो गया कैंसल, तो फिर क्या बचा गाइज, इफिशियंसी इज इक्वल टू अंडर रूट व्हाट इज K ACS अपॉन अंडर रूट व्हाट इज PH इंटू L गाइज। ठीक है, तो इसको मॉडिफाई करके मैं ऊपर लिख रहा हूँ ये फार्मूले को, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। सो व्हाट इज आई एम राइट डाउन देन, सो इफिशियंसी ऑफ अ फिन इज इक्वल टू व्हाट इज अंडर रूट K ACS अपॉन HP L स्क्वायर गाइज। L को मैंने ले लिया अंडर रूट में, तो उसका क्या बन गया L स्क्वायर। तो हमको यम की वैल्यू पता है, यम की वैल्यू क्या है, अंडर रूट व्हाट इज PH अपॉन K ACS बराबर है। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, फिर बताओ इफिशियंसी ऑफ फिन आ गई हमारे पास में 1 अपॉन यम इंटू L। समझ में आया, क्योंकि इसको मैंने क्या कर लिया अभी, यम HP अपॉन K ACS को हम कैसे लिख सकते हैं फिर 1 बाई यम, इसको अगर हम ऐसे लेके जाएंगे अभी तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यम अंडर रूट व्हाट इज K ACS अपॉन PH, तो ये आ गया फिर 1 बाई यम इंटू L। दिस इज द फिन इफिशियंसी ऑफ अ रेक्टेंगुलर फिन, व्हाट इज गाइज 1 अपॉन यम इंटू L। अब इसी तरह से हम लेंगे इंसुलेटेड एट अ टिप एंडर, उसके लिए क्या रहेगा देखिए अभी फिन इफिशियंसी। दूसरा केस इसमें फिन इंसुलेटेड एट टिप एंड बराबर है। तो इसके लिए देखिए बच्चों क्या रहेगा फार्मूला हमारे पास में। अब फिन कैसी है, इंसुलेटेड है टिप एंड से, ये फिन की डायग्राम और ये पोर्शन क्या है हमारे पास में अभी इंसुलेटेड है बराबर है। तो इसके लिए भी हमने डेफिनेशन प्रूव की है। क्या डेफिनेशन थे हमारे पास में, एन फिन इज इक्वल टू क्यू फिन अपॉन क्यू मैक्स। तो इसके लिए क्या फार्मूला आया था हमारे पास में बताइए, अंडर रूट पी एच के ए सी एस इंटू वट इज T0 माइनस TA
अब यहाँ पे आया था हमारे पास में tan हाइपरबोलिक ml गाइस अपॉन क्यू मैक्स हमने अभी अभी निकाला है, जो कितना है अभी हमारे पास में एच पी एल इंटू टी जीरो माइनस टी है। तो ये टी जीरो ये कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बचा फार्मूला हमारे पास, एन फिन इज इक्वल टू, ये भी हमने अभी सॉल्व किया, पी एच अपॉन के एस अपॉन एच पी एल, इसको भी हमने सॉल्व किया है। तो फिर क्या मिलेगा डायरेक्टली बताइए मुझे, tan हाइपरबोलिक एम एल अपॉन एम एल गाइस, क्योंकि ये हमने अभी सॉल्व किया ये वाला कंसेप्ट। इसका आंसर हमने क्या निकाला था, 1 अपॉन एम एल। तो यहाँ पे ये एज इट इज tan हाइपरबोलिक एम एल अपॉन एम एल, दिस इज द फिन इफिशियंसी फॉर विच सिचुएशंस इफ द फिन इंसुलेटेड एट अ टी पेंट्स गाइस। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं अभी थोड़ा एक्सपांड करता हूँ ये आंसर को। This is the fin efficiency for a fin insulated at a T pens. अब इधर देखिए गाइज, इफ यू कंसिडर एल यानी क्या हो गया बताइए मुझे, एल का मीनिंग हो जाएगा, एम का मीनिंग हो जाएगा अंडर रूट पी एच अपॉन के ए सी एस इंटू स्मॉल एल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारी फिन की डायग्राम है, यस और नो, यस। इसको थोड़ा मैं बड़ा निकालता हूँ अभी, दिस इज द डायग्राम ऑफ द फिन्स। बराबर है, जो यहाँ से क्या हो रही है अभी इंसुलेटेड, अगर 3D में निकालेंगे तो 3D में इसको बाद में निकालेंगे। अभी देखिए, दिस इज द इंसुलेटेड एंड, राइट। तो वी नो द यम इज पी एच अपॉन के ए सी एस इंटू स्मॉल एल। स्मॉल एल मीन्स नथिंग बट द लेंथ ऑफ दिस फिन्स, ये इसकी लेंथ ऑफ द फिन्स है। अब आगे देखिए क्या मॉडिफाई करता हूं मैं। सो अब निकालता मैं 3D में ये डायग्राम। 3D भी हमने पढ़ चुके हैं, वी ऑलरेडी नो द 3D डायग्राम। ओके, दिस इज, लुक एट दिस, दिस इज द 3D डायग्राम ऑफ द फिन्स। लुक एट दिस स्लाइड। ओके, आई ड्रॉ हियर, वी नो दैट ऑल दिस थिंग्स, यस और नो, यस। ये थोड़ा मैंने भी समझने के लिए निकाल डाला आपको लिए, ठीक है, समझने के लिए। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये क्या थी हमारी, y इज द थिकनेस, इसका b क्या था, विड्थ, और यहाँ से ये क्या थी हमारे पास में, l थी, लेंथ थी बच्चों। ये वी नो दिस ऑल दिस डायग्राम। y क्या इसका थिकनेस, b इसकी विड्थ है और l इसकी लेंथ है। कौन सी कंडीशन अज्यूम कर रहे हैं हम अभी, फिन इज इंसुलेटेड एट द टिप एंड, ये इसका एंड कैसा हो गया अभी, इंसुलेटेड हो गया, द इंसुलेटेड। ओके, तो अब देखिए ये फार्मूले में क्या चेंज आएगा, इन दिस फार्मूला व्हाट इज द चेंज, इसको तो एज इट इज रखो, tan हाइपरबोलिक एम एल। तो देखो अभी P पेरीमीटर का क्या फार्मूला था, ट्वाइस, व्हाट इज ट्वाइस बी प्लस वाई इंटू एच अपॉन अंडर रूट के ए सी एस इंटू यल गाइज। ये हमारे पास में फार्मूला था। आगे देखिए अभी इसके अंदर मॉडिफिकेशंस, ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस वाई इंटू एच अपॉन के, क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा हो गया था बच्चों, इसका वाला ये बी इंटू वाई, ये जो है इसमें से जो हीट फ्लो हो रही थी ये क्रॉस सेक्शनल एरिया था, तो के इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया बी इंटू वाई गाइज। ओके, ये अंडर रूट में टर्म मल्टीप्लाइड बाय यल। अब यहाँ पे देखो, अब आपने कौन सी भी फिन देखी होंगी तो उसका जो थिकनेस है वो हमेशा क्या है, कम ही है, एकदम कम है। किसके कंपेरेटिव में, ये विड्थ के कंपैरिजन में द थिकनेस इज वेरी वेरी निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द विड्थ।
तो अभी मैंने थिकनेस को निग्लेक्ट किया तो इक्वेशन में क्या चेंज होगा देखिए ये वाले, व्हाट इज द चेंज इन दैट इक्वेशंस, यू सी हियर ml इज इक्वल टू ट्वाइस बी, y क्या हो गया अभी, y तो हमने अज्यूम कर लिया एकदम जीरो, निग्लिजिबल कंसिडर कर लिया, किसके सामने, विड्थ के सामने, क्योंकि विड्थ हमारी ये ज़्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू द थिकनेस, तो फिर ये आ जाएगा फिर के बी ओके इंटू एच इंटू यल, के बी वाई, यहाँ पे वाई हमने लिखा, तो फिर क्या बचा देखिए फिर इन अंडर रूट, ये बी हो गया कैंसल, तो ट्वाइस एच अपॉन के वाई इंटू स्मॉल यल, यस और नो, यस। तो यहाँ पे एक हमने ml का ये भी फार्मूला डिवाइड प्रूव कर लिया बच्चों, यहाँ पे कौन सा, ml इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस एच अपॉन के वाई इंटू यल, ये भी फार्मूला आपको पता होना। यल क्या है हमारी, लेंथ ऑफ फिन्स, वाई क्या है हमारी एकदम यहाँ से स्मॉल थिकनेस, एच है हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, के क्या है हमारी थर्मल कंडक्टिविटी, ओके। सो आफ्टर दैट, तो ये जो हमने फार्मूला प्रूव किया था ये वाला, ये भी फार्मूला हमको मिलेगा अभी, क्या होगा, मॉडिफाई एन फिन इज इक्वल टू, इफ यू मॉडिफाई दिस इक्वेशंस, इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा देखिए फिर अभी, ml, ये यम बोले तो इसके जा, ml इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस एच अपॉन के वाई यल, इसको मैंने एक अंडर रूट यल से मल्टीप्लाई किया अंडर रूट में, तो यहाँ पे कितना आएगा फिर यल स्क्वेयर इंटू यल आ गया ये बाहर 1/2 का, ये समझ में आया। अंदर मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया अभी, रूट यल से अगर बाहर आ गया ये रूट एल, तो ये रूट एल कैंसिल हो जाएगा, और ये यल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने मॉडिफिकेशन किया, ये देखो समझा क्या आपको, देखिए मैं बताता हूँ, इसको मैंने एडजस्ट किया यल को, मतलब मल्टीप्लाइड बाय यल डिवाइडेड बाय यल, तो यल को अंदर लेके चले गए हम, ओके, तो वी गेटिंग यल स्क्वायर इंटू यल 1/2, तो यहाँ पे फार्मूला मिला हमको ml इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस एच के वाई यल इंटू ये कितना आएगा यल, यू टू सॉल्व दिस थिंग्स, दोनों का बेस क्या है बच्चों, सेम, पावर की क्या होती है फिर एडिशंस, बेस सेम है तो पावर की एडिशन हो गई, कितना आ गया 3/2, तो वी गेटिंग द ml अंडर रूट ट्वाइस एच के वाई यल इंटू यल स्क्वायर 3/2 गाइड्स। अब ये जो YL है, दिस इज द YL, दिस YL इज नथिंग अवर प्रोफाइल फिन एरिया, प्रोफाइल फिन एरिया, which one, this Y into L, Y is nothing but the what is the thickness of a fin, L is nothing but the length of a fin, तो ये Y into L ये कैसे शो करते हैं हमने, AP से, AP क्या हमारा प्रोफाइल फिन एरिया, which one, y into L, y is nothing but the thickness, L is the length of the fin, तो क्या मॉडिफिकेशन होगा फिर ये वाली इक्वेशन में देखिए गाइज, व्हाट इज द मॉडिफिकेशन हियर, ml अंडर रूट ट्वाइस एच के वाई एल रिप्लेस हो जाएगा AP से इंटू यल 3/2 गाइज, ओके, यू राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स। तो फिन इफिशियंसी जो फंक्शन है, फिन इफिशियंसी किस पे डिपेंड है, ml पे, बिकॉज फिन इफिशियंसी डिपेंड्स अपॉन द ml, सो हाउ टू कैलकुलेट द ml, फॉर विच सिचुएशन, इफ द फिन इज इंसुलेटेड एट द टिप एंड वी गेटिंग दिस ml इज आल्सो, ml इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस एच अपॉन k इंटू AP इंटू यल टू द पावर 3/2 आल्सो, इन दिस मोड वी कैन गेट द इक्वेशन आल्सो गाइज, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको और मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ,
अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज द चेंज नाउ, यहाँ पे मैं लेता हूँ भी करेक्टेड लेंथ ऑफ फिन, ओके, जो शो की गई अभी एलसी से। तो ये एलसी कितना आएगा, एलसी इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा 1 + y/2। ये जो कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं मैं बच्चों, ये कौन से कंडीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं मैं, जब मैंने थिकनेस एकदम स्मॉल कंसीडर कर ली एज कंपेयर टू द विड्थ ऑफ द फिन। तो यहाँ पे मुझे करेक्टेड लेंथ मिली, एलसी इज इक्वल टू 1 + y/2। तो ये कैपिटल एल जो ये रिप्लेस हो गया कैसे, एलसी से 1 + y/2। y क्या है मेरी, थिकनेस ऑफ अ फिन। तो अब देखिए फिर क्या मिलेगा, करेक्टेड लेंथ का अगर मैं फार्मूला चेंज करूंगा तो इफिशियंसी ऑफ द फिन क्या हो जाएंगी, इट इज tan हाइपरबोलिक, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूं, यम का वैल्यू अभी हमने प्रूव किया है। कितना प्रूव किया है बच्चों, यम का वैल्यू हमने प्रूव किया है 2h/ky, अभी प्रूव किया है हमने, 2h/ky इंटू क्या था हमारे पास में यल को कैसे शिफ्ट कर रहा अभी मैंने, यल सी से, तो ये यल शिफ्ट हो गया यल सी से, तो यहाँ पे यल आ जाएगा अभी, मतलब ये देखो ये यल शिफ्ट हो गया यल सी से, यम शिफ्ट हो गया इससे, वी नो यम इज इक्वल टू √ 2h/ky, इसको मल्टीप्लाई करा था ये यल कैसे शिफ्ट हो गया अभी यल सी से, तो ये फार्मूला बना अभी 2h/ky इंटू यल सी, और यल सी की जगह भी मैं क्या लिख रहा हूँ 1 + y/2 गाइज। तो देखिए अभी यल सी इज रिप्लेस बाय 1 + y/2 डिवाइडेड बाय दिस वन ml √ 2h/ky इंटू 1 + y/2 also. Yes or no? Yes. So we getting this much equation also guys. For which situation, ये किसके लिए, फिन इज इंसुलेटेड एट अ टीप एंड्स, ये इसके लिए गाइज। तो